Hello friend, today we will see continuity equation in 3 dimension. Until now we have finished types of flow and continuity equation. So today we will see this general continuity equation in Cartesian coordinate. Cartesian coordinate means we have three axes x, y, z, and we are going to find out continuity equation for that 3 dimensions. Okay. So for that purpose we will consider one small element, that is this. Okay, so this is x direction, this is z direction, this is y direction. So along x direction the length of this element is dx, along y direction length of this element is dy, and along z direction length of this element is dz. Clear? So along x axis उसका dimension dx है, along y axis dy और dz. Clear? So for this element we want to find out continuity equation. Clear? So for that purpose we need to find out mass flow entering this element in all 3 dimensions. That is mass of element entering x direction, mass of fluid entering in y direction, and mass of fluid entering in z direction. So dx, dy, dz क्या है आपको पता होगा. dx is length of this element in x direction, dy length of this element in y direction, dz length of this element in z direction, that is height. Okay, so now we want to find out how much mass flow rate entering in x direction, how much mass flow rate entering in y direction, and how much mass flow rate entering in z direction. ये तीन चीज़ें हमें निकालनी है. Okay, so that we can find out total mass flow rate entering in this element, और उससे हम उसका continuity equation निकाल पाएंगे. So let's start with x direction, but before that I explain this dx, dy, dz dimensions. In direction x, y, z, velocity of liquid in x direction is u, v direction, y direction में v, और z direction में w. Okay, what is this u, v, w? Velocity of water in x direction उसे हम u कहेंगे, y direction में velocity को v कहेंगे, और z direction में velocity को w कहेंगे. Clear? So u, v, w are the inlet velocity components in x, y, and z direction respectively. Now we want to find out how much mass is entering in x direction. तो x डायरेक्शन पे x डायरेक्शन कौन सा है आपको मालूम है, ये वाला. तो कंसीडर करो फेस ए बी सी डी, ए बी सी डी. ये जो फेस है इसके थ्रू वाटर अंदर आएगा, जो भी लिक्विड है वो अंदर आएगा. तो हम उसका मास फ्लो रेट कैसे निकाल पाएंगे. अब हम मालूम है मास फ्लो रेट इक्वल्स टू रो इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट. तो उसको वॉल्यूम फ्लो रेट को हम रो क्यू भी लिखते हैं. ओके, तो और क्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए इंटू वी, ये वेलोसिटी है. क्लियर? सो अगर इफ यू नो रो, एरिया एंड वेलोसिटी, देन वी कैन फाइंड आउट मास फ्लो रेट. क्लियर? सो इन एक्स डायरेक्शन रो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड एरिया. अब एरिया ए बी सी डी क्यों लिया है, क्योंकि ए बी सी डी के थ्रू वो लिक्विड अंदर आ रहा है. तो एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना आएगा, ए बी डिस्टेंस कितना है जेड, ये देखो ये वाला डिस्टेंस ए बी का है जेड. ओके, और बी सी डिस्टेंस कितना है वाई, ये डिस्टेंस इतना वाई बराबर. क्लियर? ए बी कितना जेड और बी सी कितना वाई. तो ए बी सी डी का एरिया कितना होगा, डी वाई इंटू डी जेड. क्लियर? तो देखो रो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन यू और एरिया ऑफ ए बी सी डी डी वाई इंटू डी जेड. क्लियर? नाउ सपोज mass m mass is entering in element. Now suppose this mass is changes with dm by dx, that is dm by dx क्या है, rate of change of mass in x direction. ओके, और ये मास कितने डिस्टेंस तक चेंज हो रहा है, dx.
तो dx डिस्टेंस के लिए कितना मास चेंज होगा, डो एम बाय डो एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर, फिर से एक बार बताता हूँ। सपोज m मास इज एंटरिंग इनटू द एलिमेंट, rate of change of m with respect to x, what is this, rate of change of mass with respect to x। लेकिन ये हमें dx डिस्टेंस तक चाहिए क्योंकि इसकी जो जर्नी है ट्रैवल है dx डिस्टेंस तक है। तो dx डिस्टेंस तक कितना मास चेंज होगा, डो एम बाय डो एक्स थ्रू डिस्टेंस dx बराबर, अंदर मास आया m प्लस इतना मास चेंज हुआ तो बाहर कितना जाएगा, इतना। क्लियर, तो इसे हम लिखेंगे द मास ऑफ फ्लूइड लिविंग द फेस EFGH। EFGH कौन सा, यहाँ पर देख लो, ABCD के थ्रू मास अंदर आ रहा है x डायरेक्शन में और EFGH के थ्रू बाहर जा रहा है। तो EFGH के थ्रू कितना मास बाहर जाएगा, जितना अंदर आया वो प्लस जितना अंदर चेंज हो रहा है डो एम बाय डो एक्स थ्रू डिस्टेंस dx। क्लियर, तो वो कितना होगा, जितना अंदर आया वो m जो हमने अभी फाइंड आउट किया, रो u डिवाइड dz प्लस इतना वो चेंज हो रहा है। क्लियर, तो दिस मच मास गोइंग आउटसाइड ऑफ द एलिमेंट एंड दिस इज द मास कमिंग इनसाइड द एलिमेंट। सो गेन ऑफ मास और मास एक्यूमुलेटेड इन एक्स डायरेक्शन इज इनिशियल माइनस फाइनल और फाइनल माइनस इनिशियल, जो भी लेना है वो, मास थ्रू ABCD माइनस मास थ्रू, यहाँ पर देखिए, मास थ्रू ABCD माइनस मास थ्रू EFGH। मास थ्रू ABCD आया डो यू माइनस सॉरी रो यू डिवाइड dz माइनस बाहर कितना जा रहा है ये वाला, तो ये एज इट इज लिख दिया। अब माइनस है इसलिए ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा। क्लियर, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, माइनस डो ऑफ रो यू डिवाइड dz इंटू dx अपॉन dx। क्लियर, अब विथ रिस्पेक्ट टू x उसका डेरिवेटिव लेना है तो डिवाइड dz कॉमन है, कांस्टेंट आएंगे जिसको हमने बाहर रख लिया। ओके, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, रो इंटू यू। सो मास गेन इन मास इन एक्स डायरेक्शन इज माइनस डो ऑफ रो यू अपॉन डो एक्स dx dy dz। क्लियर, समझ में आ गया ये हमने कैसे कैलकुलेट किया। हमने पहले कैलकुलेट किया कितना मास अंदर आया और कितना मास बाहर जा रहा है। तो जितना अंदर आया उसमें से बाहर ये माइनस दिखा रहा है, इसका मतलब क्या, ये मास ज़्यादा है इन शॉर्ट। तो ये माइनस ये क्या, तो ये प्लस आएगा। तो ये कितना अंदर आ रहा है, रो यू डिवाइड dz, कितना बाहर जा रहा है, ये वाला पुट कर दिया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट दिस। ओके, आफ्टर सिमिलरली y डायरेक्शन में कितना मास अंदर आ रहा है और कितना मास बाहर जा रहा है, ये हमने निकाला तो हमें ये मिलेगा। आप करके भी देखिए, इसका एरिया आएगा dx इंटू dz, फिर से वो डो एम बाय डो वाई थ्रू डिस्टेंस dy, आप उसको फिर से सब्सट्रैक्ट कर दो, आपको लास्ट में ये मिलेगा। क्लियर, सो व्हाट इज दिस गेन इन मास इन y डायरेक्शन। क्लियर, सिमिलरली z डायरेक्शन में कितना मास अंदर आ रहा है और कितना मास बाहर जा रहा है, तो कितना मास अंदर आ रहा है, रो इंटू एरिया ऑफ दिस इंटू वेलोसिटी, और बाहर कितना जाएगा, m प्लस डो एम बाय डो जेड थ्रू डिस्टेंस dz। उसको आप सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट दिस माइनस डो ऑफ रो w मीन्स वेलोसिटी इन z डायरेक्शन अपॉन डो जेड इंटू dx dy dz। क्लियर, so this is the gain of mass in x direction, this is gain of mass in y direction and this is gain of mass in z direction। तो तीन अलग अलग डायरेक्शन में इतना मास गेन हुआ, तो टोटल कितना मास गेन हुआ, इन सब का एडिशन, इन सब के एडिशन किया, नेट गेन ऑफ मासेस, तो आपको मिलेगा dx dy dz सब कॉमन है तो ब्रैकेट के बाहर आ गया। यू विल गेट डो ऑफ रो यू अपॉन dx डो एक्स प्लस डो रो वाई अपॉन डो वाई प्लस डो रो डब्ल्यू अपॉन डो जेड इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। इतना मास वो एलिमेंट के अंदर है। ओके, नेट गेन ऑफ मासेस ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, नाउ आपको मालूम है मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये जो मास है वो आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो दूसरे तरीके से हम वो मास कैसे निकाल सकते हैं, आपको मालूम है, मतलब डो एम बाय डो टी एट, मतलब ये मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर, क्योंकि आप उसे क्रिएट भी नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो। और मास को हम क्या लिख सकते हैं, रो इनटू वॉल्यूम।
क्लियर। वॉल्यूम क्या है इस क्यूब एलिमेंट का, dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड, तो वो आएगा ये वाला। क्लियर। ये जो, फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो नेट गेन ऑफ मास, क्लियर। अब मास क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, तो इस एलिमेंट को कंसिडर करो टोटल। इसमें कितना मास है, वो m है सपोज, और हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल रहे हैं। क्लियर। लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट है तो हम क्या लेंगे, dm बाय dt। तो मास को हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वॉल्यूम। क्लियर। रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम को फिर से क्या लिख सकते हैं हम, दिस इज d बाय dt, रो इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। क्लियर। इसका वॉल्यूम क्या आएगा, डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। तो वो हमें मास क्या मिल रहा है, मास फ्लो रेट डो बाय डो ऑफ रो इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड बाय डो टी। अब ये दो इक्वेशन, ये डी एक्स डी वाई डी जेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है, वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, डो रो अपॉन डो टी इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। ये मास फ्लो रेट और वो जो हमने नेट गेन इन मास इन ऑल डायरेक्शन निकाला है वो सेम रहेंगे। ये वाला मास और जो हमने अभी अभी निकाला ये सेम रहेगा। क्लियर। इसको हमने इक्वेट कर दिया, दिस इज नेट गेन इन मास इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज एक्स वाई जेड, और ये हमारा मास एक्यूमुलेटेड इन एलिमेंट वो हमने निकाला। तो अब देखो ये सभी को इधर डी एक्स डी वाई डी जेड कैंसिल होगा दोनों साइड में, इसको मैंने इधर भेज दिया, सब प्लस हो जाएंगे। सो डो रो अपॉन डो टी प्लस ये वाला एज इट इज, प्लस डो ऑफ रो यू इंटू डी अपॉन डो एक्स प्लस डो रो वी अपॉन डो वाई प्लस रो डो डब्ल्यू अपॉन डो जेड इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ये सब इधर आ गया तो ये जीरो हो जाएगा। क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन जनरल। ओके। और अब ये हो गया जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगर हमारा फ्लो स्टेडी है, स्टेडी मीन्स आपको पता है द फ्लो इन विच ऑल पैरामीटर्स आर कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके सभी पैरामीटर या प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रहते हैं। तो ये जो रो है वो भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रहेगा। अगर फ्लो स्टेडी है तो डो रो अपॉन डो टी जीरो आएगा, बराबर। तो हमें ये जीरो आएगा तो इस इक्वेशन को सिर्फ इतना ही बचा रहेगा। क्लियर। अगर हम कोई दो ही डायमेंशन कंसीडर कर रहे हैं, तीसरा अपन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सपोज हमने जे डायरेक्शन कंसीडर नहीं किया तो डब्ल्यू जीरो हो जाएगा, तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा, ये वाला चला जाएगा, डो यू अपॉन डो एक्स प्लस डो वी अपॉन डो वाई इक्वल्स टू जीरो। अगर दूसरी बात, ये फ्लो इनकम्प्रेसिबल है, स्टेडी है, स्टेडी के लिए तो वो रो चला गया, अब ये इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल मतलब जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। ओके। अब डेंसिटी कांस्टेंट है मतलब वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगी। अब वो इसमें से हमने डेंसिटी बाहर निकाला, कॉमन लिया और जीरो की तरफ भेज दिया तो जीरो बनेगा। तो ये इक्वेशन कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, ऐसे डी यू बाई डो एक्स प्लस डो वी बाई डो वाई प्लस डो डब्ल्यू बाई डो जेड इक्वल्स टू जीरो। क्लियर। अगर फिर से रिपीट करता हूँ मैं, अगर आपका फ्लो स्टेडी है तो डो रो बाय डो टी कैंसिल हो जाएगा, आपका इक्वेशन बचेगा ये जनरल इक्वेशन से, ये जनरल इक्वेशन है, सॉरी, ये जनरल इक्वेशन है। ये अगर स्टेडी है तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, बचा हुआ ये पार्ट हमने लिख लिया। अगर इसमें स्टेडी होने के साथ अगर अब ये इनकम्प्रेसिबल भी है तो रो इसका कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है तो वो डेरिवेटिव के बाहर आएगी और इधर भेजेंगे तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगी। तो आपका इक्वेशन ऐसे डिराइव होगा। सो दिस इज कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अगर आप कोई दो का डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, मतलब जे डायरेक्शन कंसिडर नहीं कर रहे तो डब्ल्यू जीरो, तो दो डायरेक्शन के लिए आपको ये मिलेगा। क्लियर। सो आज जो हमने डेरिवेशन लिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये एग्जाम में बहुत बार आया है और बहुत ही सिंपल है। डिराइव कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशन और डिराइव कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो तब आप ये इक्वेशन आपको डिराइव करना है, और डेफिनेटली ये या उसके आगे दो अभी और है,
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और एक है, तो इसमें से एक डेफिनेटली आपको आता है। तो ये छोड़िए के मत, अगर आपको कोई डाउट रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।